परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से, परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं। कार्यक्रम शेराप सेंगपो आपको हर रोज भगवान बुद्ध और उनके दर्शन से रूबरू करा रहा है। इस कार्यक्रम में हर रोज आप भारत के अलग अलग हिस्सों में रह रहे बौद्ध धर्मावलंबियों की जिंदगी और भगवान बुद्ध में उनकी अपार आस्था से रूबरू होते हैं। बॉमडीला मॉनेस्ट्री में परम पूजनीय प्रोफेसर सैम डोंग रिम्पोचे से लोग मिलने को किस कदर बेताब हैं, ये आप इस नज़ारे को देखकर आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। स्थानीय लोगों के साथ साथ बौद्ध भिक्षु भी परम पूजनीय के दर्शन पाकर निहाल हो उठे हैं। इस मौके पर परम पूजनीय प्रोफेसर सैम डोंग रिम्पोचे किताब का विमोचन भी करते हैं। अरुणाचल के लोगों के हिंदी ज्ञान को देखकर परम पूजनीय प्रोफेसर सैम डोंग रिम्पोचे उनकी प्रशंसा भी करते हैं। परंतु ये आनंद की विषय है कि यहाँ सभी लोग राष्ट्रभाषा हिंदी जानने लगे हैं, तो हिंदी हम लोगों की संप्रेषण का एक अच्छा माध्यम बन सकते हैं। परम पूजनीय 51 साल पहले अरुणाचल के ही रास्ते से होकर भारत शरण लेने आए थे। उस दौरान परम पूजनीय ने बोमडीला के इसी मठ में कुछ दिन गुजारे थे। उसी मठ में पहुंचकर परम पूजनीय भावुक हो उठे। आज से 51 वर्ष पहले हम यहाँ से गुजरे थे भारतवर्ष में शरण लेने के लिए। तब यहाँ 2 दिन रुके रहे और उस समय पूर्व जी की एक छोटा मठ यहाँ पर थे, उसका दर्शन करने की अवसर मिला। अपने अगले एपिसोड में भी हम आपको दिखाएंगे परम पूजनीय प्रोफेसर सैम डोंग रिम्पोचे की अरुणाचल यात्रा की झलकियां। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। नमस्ते। 19th of January 2011, Wednesday and 15th lunar day of 11th month. The elemental combination is water and water, which is a very good combination and it is eligible to bring strength in life, starting of new ventures, promotion of commerce, marriage ceremony and dealing family matters are very much auspicious. Plantation of trees and flowers, journey or shifting of residence is favorable. This day is especially good day for people who are born under mouse and pig animal signs. However, as BT appears from 9:12 p.m. onwards from north to south direction, so avoid undertaking Tarsic therapies like bloodletting and moxibutions. Since it is Nying Namgo
so it is inauspicious for parties among friends and relatives, or parties for seeking new relationship. Pomdo or empty vase is at east direction, so important activities should not be done while facing east. This day is bad day for people who are born under horse or snake. 20th January 2011, Thursday and 16th lunar day of the 11th month of Iron Tiger year. Elemental combination is wind and wind, which is a good elemental combination, and this combination has inspiring energy that fulfills one's wishes without delaying. Good day for taking decisions, and most of your plan and project can be accomplished successfully. Since it is Kaginambu, so avoid any kind of construction work like renovation of house or laying of foundations. This day is especially good day for people of tiger and rabbit years. And Pomdong or empty vase is at east direction, so important activities should not be done while facing east. 21st January 2011, Friday and 13th lunar day of the 11th month of Iron Tiger year. Elemental combination is earth fire, which is inauspicious, and this combination will bring burning and lead to suffering. It has blazing energy that lead to suffering and destruction. Defeating or destroying enemies and undertaking other violent activities are strong. Likewise, the day is not good for undergoing accessory therapy, that is bloodletting and moxibustion, due to it is sekse, and since it is Phangmen Nambu, therefore wedding and engagement ceremony should not be held on this day. And this is a good day for people who belong to the animal sign of bird and monkey. And Pomdong or empty vase is at east direction, so no important activity should be done while facing east. Thanks for watching, and see you tomorrow at the same channel at same time. बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संघम। ये कार्यक्रम आपको हर रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। इस संदर्भ में आप लोग ज्यादा भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं। मैदानी इलाका में अनेक सदियों तक गुलाम रहने की परिणाम स्वरूप लगभग अपना पहचान खो चुके हैं। खाने में, पहनाव में नहीं खोया हो, भाषा में निश्चित रूप से खोए हैं, लेकिन हिमालय की गोद में रहने वाले सुदूर प्रदेश के लोग उस प्रभाव में अभी तक उस प्रभाव से बचे रहे हैं, लेकिन कब तक बचे रहेंगे ये मुझे नहीं मालूम है। 17 तारीख को, इस महीने के 17 तारीख को मैं बेंगलुरु से गुवाहाटी आ रहे थे जहाज में, और जहाज पत्र पर हम बैठे हुए थे, तो मैंने समाचार पत्र उठाया। टाइम्स ऑफ इंडिया की 17 तारीख का वह संस्करण था। उसमें मैंने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में
36 भाषाएं लुप्त होने की कगार पर हैं। अरुणाचल प्रदेश की 36 भाषाएं इस समय लुप्त होने की कगार पर हैं। ये समाचार था मजेदार आश्चर्य हुआ। उस बात को किसने कहा? उस बात को कोई अरुणाचल प्रदेश की विद्वान ने नहीं कहा, अरुणाचल प्रदेश के सरकार ने भी नहीं कहा, भारत सरकार ने भी नहीं कहा। वह यूनेस्को का एक शोध की प्रतिवेदन थे। उस प्रतिवेदन की संस्कृति में ये बात कही गए थे और 4-5 भाषाओं का नाम भी लिया था। और उस सूचना को, उस समाचार को भारतीय सरकार माध्यम से चलने वाले एक भाषाओं का संस्था है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस, उस किस विद्वान ने उस समाचार को अखबार में समाचार पत्र में दिया था। संभवतः आप लोगों में से बहुत लोगों को ये बात का जानकारी नहीं होगी कि 36 भाषाएं लुप्त के कगार पर अरुणाचल प्रदेश में हैं। तो वो समाचार पत्र के माध्यम से आपको मिल रहा है। ये बहुत आदमी को भयभीत करने वाले समाचार हैं। अगर ऐसा चलते जाए तो कुछ वर्षों के बाद अरुणाचल की या मेम्पा की नाम निशान नहीं रहेगा। मुझे एक घटना याद है। मेरा मित्र लद्दाख का एक लामा जी हैं, लामा लोकसान। वह मोरारजी भाई जब प्रधानमंत्री थे, मोरारजी भाई से मिलने गए थे। उन्होंने मोरारजी भाई से बहुत सा शिकायतें लेकर गए थे कि लद्दाख में ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। और मोरारजी भाई सुनते रहे और लामा जी ने कहा कि वहाँ पर जहाज का आवागमन सुनिश्चित होना चाहिए। अभी वहाँ पर कोई जहाज नहीं जाते हैं, सैनिक जहाजों को छोड़ करके। तो मोरारजी भाई ने कहा बहुत अच्छा है, जहाज क्यों जाए? और वहाँ पर ये नहीं है, वो नहीं है, टीवी नहीं है, वगैरह वगैरह। सभी कहते हैं कि मोरारजी भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्यों जाए? तो लामा जी को बहुत गुस्सा आया कि क्या फिर हम लोग उस तरफ देखें? तो मोरारजी भाई ने कहा कि आप किसी भी तरफ पे देखो, अगर आप लद्दाख को लद्दाख रहने देना चाहते हैं या नहीं, लद्दाख को बॉम्बे बनाना हो तब मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। 1 साल में बन जाएंगे, जहाज भी भेज देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। अगर लद्दाख को लद्दाख रहना चाहते हो, रखना चाहते हो, तो आपका ये सब योजना सही नहीं है। तो लामा जी बड़ा दुखी होकर के हम लोगों से कहा कि ये बुढ़ा ऐसे कहते हैं हमसे। मैंने कहा कि ये बुढ़ा बहुत ठीक कहते हैं। अगर ऐसा 10 बूढ़े हिंदुस्तान में होता तो हिंदुस्तान रह जाते, भारतवर्ष रह जाते और संपूर्ण विश्व में नेतृत्व देते। किसकी पीछे लागू नहीं होता, सबका मार्गदर्शक होता। लेकिन वह ब्रिटिश राज ने रहने नहीं दिया। आज हम भारतवर्ष ज्यादा ब्रिटिश हैं, कम भारतीय हैं। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि मेम्पा ही रहें, अरुणाचल प्रदेश ही रहें। और इसमें बहुत लोग सोचते हैं ऐसा करने से विकास रुक जाएंगे। विकास नहीं रोकेंगे। अगर रुक भी जाएंगे तो
विनाश भी रुक जाएंगे। हर विकास के साथ विनाश जुड़े हुए हैं। जहाँ विनाश ना हो ऐसा कोई आधुनिक विकास आज तक हुआ नहीं है। अब हर चीज़ को ले लें, एक एक बात की विकास के तथाकथित विकास को ले लें, उन सब के साथ एक विनाश जुड़े हुए हैं। तो इसलिए पहले उस विनाश को आप पहचानें। उस विनाश को पहचानने के बाद उसकी संभावना को रुक करके मात्र विकास होने की संभावना है, उसकी तलाश करें, उसका खोज करें और उस दिशा में जाएं, तो विकास नहीं रुकेगा और विनाश रुकेगा। इसलिए अपने अस्मिता को कभी हीन भावना से ना देखें। हर मनुष्य संपूर्ण होता है, कोई हीन नहीं होते हैं, कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। मनुष्य मनुष्य होता है, वह हर प्रकार की संभावना से युक्त मनुष्य होता है। और वो जो भी हैं, जो भी उसके कायिक रूप हैं, जो भी उसके तनाव हैं, जो भी उसकी भाषा है, जो भी उसके सोचने की तरीका है, वो अपना आप एक संपूर्ण है। उसको ये दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।